Hello everyone. At the outset, I would like to thank JASCAP organization for the phenomenal work they are doing, and also for giving me this opportunity today to be part of increasing awareness, especially because this is a sarcoma awareness month. So I'll give a brief introduction to myself. I'm Dr. Jyoti Bajpai. I'm a medical oncologist and professor in the Tata Memorial Cancer Center. And also I'm associated with certain national and international organizations like ISMPO, Immuno-Oncology Society of India, European Society of Medical Oncology, and SIDSI WIN Association. Thank you very much. So first I would say this is not only to make you aware about the treatment in this particular month, but I wish that this kind of knowledge should spread everywhere in the community, in every day, every month, and a whole year as well, because this is very, very important. So you must have heard my colleague Dr. Rekhi, who has discussed about what could be the risk factors, diagnostic aspects and presentations for this particular kind of tumor sarcomas, which involve bone and soft tissues, both, all age group of patients, because there are different types of cancers. So after that, I would come to a very, very important and pertinent aspect, which is the treatment, because everybody ultimately after diagnosis want to get treated appropriately. So sarcoma treatment is essentially a majority of the time a multimodality care. तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सर्जरी अलोन सफिशिएंट नहीं होती है बहुत सारे केसेस में। यदि हम बहुत ही अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लेते हैं और कुछ लो ग्रेड किस्म के ट्यूमर होते हैं, तो उस केस में हो सकता है कि सर्जरी अलोन मे बी सफिशिएंट, but in all other cancers which are much more common, especially if I'll give you an example, which are the most common malignant bone tumors like osteogenic sarcoma, or we call it as osteosarcoma or Ewing sarcoma, then in these kind of bone sarcomas we definitely require multimodality care, wherein surgery along with chemotherapy is the norm. So chemotherapy is actually a wonder story in this kind of bone tumors. If I'll give you an example of osteosarcoma, then 3 to 4 decades back, when chemotherapy was not a prevalent practice, that time surgery alone results in a very dismal kind of outcome, less than 20%. While when chemotherapies come into vogue and the treatment is in the form of joint surgery as well as chemotherapy, it has increased the survival statistics from 20% to more than 60%. So this is truly a wonder story wherein we have seen that if you combine appropriately two modalities, you can really change the fate of the disease. So it is very important that you have to have a proper early diagnosis. Then you have to come to proper referral centers. Referral centers, when we say, it means that who treats a large number of cases, so that they have expertise with all the specialties to provide you optimum care. When we talk about I will go one by one. So if I'll talk about osteogenic sarcoma, generally we start with प्री-ऑपरेटिव कीमोथेरेपी, जिसको कि टेक्निकल टर्म्स में हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी भी कहते हैं। तो हम कीमोथेरेपी के कुछ साइकिल्स देते हैं, उसके बाद हम सर्जरी करते हैं, एंड उसके बाद अगेन हम कीमोथेरेपी देते हैं, जिसे हम पोस्ट ऑपरेटिव कीमो या हम उसे एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। तो ये सारा का सारा ट्रीटमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है, स्पेशली बिकॉज इंडिया इज अ लो मिडिल इनकम कंट्रीज, सो जो चीज़ मैं इंडिया के लिए और आपको बता रही हूँ वो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्ल्ड वेयर इन लो मिडिल इनकम कंट्रीज पीपल रहते हैं, उन सभी के लिए एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पे इनएडवर्टेंट ट्रीटमेंट काफ़ी कॉमन है। तो जब हम पेशेंट्स को देखते हैं अपने सेंटर में, कई बार ऐसा होता है कि पेरिफेरल सेंटर से वो कुछ तरीके का ट्रीटमेंट पहले ही लेकर आ जाते हैं। वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो आउटसाइड सेंटर्स होते हैं उनमें उतनी एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं होती, और जैसा कि आपको पहले मेरे कोलीग ने बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स किस्म का ट्यूमर होते हैं और इनमें अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस और अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि इस तरीके का कुछ इनएडवर्टेंट ट्रीटमेंट, चाहे वो कीमो के फॉर्म में हो, चाहे वो सर्जरी के फॉर्म में हो, और चाहे वो रेडिएशन के फॉर्म में हो, उन्हें मिल जाता है, तो उनकी बीमारी जो है अपस्टेज हो जाती है, और उस समय उनके जो अल्टीमेट आउटकम्स या सर्वाइवल हम बोलते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरा पहला मैसेज ये है कि एज फार एज पॉसिबल, इफ देयर आर सर्टेन डाउट्स कि ये एक मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर या मैलिग्नेंट सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर हो सकता है,
तो जितना जल्दी हो सके आप अप्रोप्रिएट रेफरल सेंटर में आके अपना डायग्नोसिस और अपनी केयर का प्रावधान करें। फिर जब आपका ट्रीटमेंट किसी ठीक जगह से प्लान हो जाता है तो इट इज़ पॉसिबल कि जहाँ पर एक्सपर्टीज अवेलेबल है पेरिफेरल सेंटर्स में, जहाँ प्रॉपर ऑन्कोलॉजिस्ट जो कि स्पेशली ट्रेंड है, फॉर एग्जांपल यदि मैं कीमोथेरेपी की बात करूंगी तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी की फैसिलिटी जहाँ अवेलेबल है उस तरीके के सेंटर्स में वो ट्रीटमेंट एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो पहला मेरा मैसेज है कि अर्ली रेफरल टू गेट प्रॉपरली डायग्नोज्ड एंड प्रॉपरली प्लान्ड योर ट्रीटमेंट, बिकॉज फर्स्ट ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। सेकेंड, यदि आपका प्लानिंग हो गया है और आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, बहुत टाइम हम जो मुंबई में अपने सेंटर में पेशेंट्स देखते हैं वो सारे पेशेंट्स 60 से 70% तक बाहर से आते हैं। यदि उनके लिए फीजिबल नहीं है यहाँ पर रुकना तो वो बाहर वापस जाके अपने कुछ सेंटर्स में जहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है वो ट्रीटमेंट एग्जीक्यूट करा सकते हैं। फिर मल्टी मोडालिटी केयर का बहुत इंपॉर्टेंस है। थर्ड मैसेज मेरा ये है, तो यदि ट्रीटमेंट के लिए आपका एक पार्ट पूरा हो गया, कई पेशेंट ये इंक्वायर करते हैं कि हमारा तो सर्जरी हो गया, ट्यूमर तो आउट है, तो अभी क्यों वापस कीमोथेरेपी लेना है, तो मैं आपको बहुत ही स्ट्रांगली बोलूंगी ये लाउड एंड क्लियर दैट मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट यदि आपका प्लान हुआ है तो आपको वो पूरी तरीके से उसको कंप्लीट करना है। हमने अपने सेंटर्स में ये स्टडीज़ की हैं और बाहर भी ये स्टडीज़ हुई हैं कि यदि कोई ट्रीटमेंट पूरी तरीके से प्रोटोकॉल बेस्ड पूरा किया जाता है तो उसके आउटकम्स काफ़ी सुपीरियर होते हैं इन कंपैरिजन टू दूसरा ट्रीटमेंट जो हाफ वे कंप्लीट किया जाता है। तो ऑल्सो मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ट्रीटमेंट जो हैं जो हमारे खुद के सेंटर में डेवलप हुए हैं, जो हमारे तरीके के कंट्री में और सेटअप में मोर एप्लीकेबल है। मैं आपसे ऑस्टियोसार्कोमा की बात कर रही थी, तो हमने एक इंडिजिनस प्रोटोकॉल बनाया है जिसे हम OGS 12 बोलते हैं। ये प्रोटोकॉल जो है ये एक लो कॉस्ट प्रोटोकॉल है, पूरी तरीके से OPD बेस्ड केयर हम इन पेशेंट्स को डिलीवर कर पाते हैं और इसके लिए इन पेशेंट या एडमिशंस की ज़रूरत भी नहीं होती। ये इस तरीके का प्रोटोकॉल लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में काफ़ी आसानी से फीजिबल है और इसकी कॉस्ट भी कंपैरेटिवली रेयर है। इससे हमने कई पेशेंट्स करीब 1000 पेशेंट्स ट्रीट कर चुके हैं हम इस प्रोटोकॉल में और हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो इंटरनेशनली कंपेरेबल हैं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि कई बार पेशेंट ये इंक्वायर करते हैं कि क्या इस तरीके का डायग्नोसिस होने के बाद हमें दूसरे देशों में जाना ज़रूरी है, क्या बहुत बड़े बड़े सेंटर्स जो वर्ल्ड के वहीं इसका अप्रोप्रिएट इलाज हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। हमारे देश में सभी तरीके की अप्रोप्रिएट सुविधाएं अवेलेबल हैं। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि एक टर्शरी केयर सेंटर है में हम वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट देते हैं और मल्टी मोडालिटी केयर के माध्यम से हमने ये दिखाया है और रिजल्ट्स पब्लिश्ड हैं कि हमारे अपने इन हाउस प्रोटोकॉल्स वर्ल्ड स्टैंडर्ड के कंपैरेबल है। हम कुछ और दूसरे ट्यूमर्स की बात करें, यदि इविंग सार्कोमा एटसेट्रा, तो उसमें भी इसी तरीके की मल्टी मोडालिटी केयर एप्लीकेबल होती है। मैं एक बात और आपको बोलूँगी कि कीमोथेरेपी से लोग डरते हैं क्योंकि उनके साइड इफेक्ट से उनको काफ़ी वरीड रहते हैं। तो मैं ये बताऊँगी कि कीमोथेरेपी मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में ठीक तरीके से टॉलरेट होती है। साइड इफेक्ट्स होते हैं बिकॉज नथिंग इज होली वाटर, एवरीथिंग विच विल बी हैविंग इफेक्ट्स विल बी हैविंग साइड इफेक्ट्स टू। तो आप उससे घबराइए मत। हमारे पास पूरी तरीके के ट्रीटमेंट हैं जो हम प्री मेडिकेशन में भी देते हैं, लेटर ऑन भी देते हैं। आप नॉर्मल हम जब आपको फॉलो अप में बुलाएं तब उस समय आप आइए और डॉक्टर्स के कंसल्टेशन में आइए, सो दैट जो भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है उसको डील करने के लिए जो फैसिलिटीज अवेलेबल है वो आपको उचित रूप से दी जा सके। तो एक लास्ट बात मैं आपको और बताऊंगी कि नई तरीके के एडवांसमेंट्स आए हैं जिन्हें हम टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। तो उसमें कुछ टारगेट्स होते हैं जो ट्यूमर में एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने दवाइयाँ डिस्कवर की हैं और वो दवाइयाँ जब देते हैं तो नॉर्मल कीमोथेरेपी से कहीं बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं और इफेक्ट्स यदि वो स्पेसिफिक टारगेट अवेलेबल है तो कहीं ज़्यादा हो सकता है। सिमिलरली एक बहुत ही नई तरीके का इन्वेंशन है इम्यूनोथेरेपी। एक डिकेड पहले इसके लिए प्रोफेसर जिम एलिसन एंड हॉन्जो, इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था इम्यूनोथेरेपी डिस्कवरी में ऑन्कोलॉजी में। और उस तरीके का ट्रीटमेंट ऑल्दो इन सम कैंसर्स इट हैज़ डन वंडर्स लाइक मेलेनोमा। सार्कोमा में ये डेवलपमेंटल स्टेज में है। कुछ तरीके के सार्कोमास हैं जैसे एल्वुलर सॉफ्ट पार्ट सार्कोमा या अनडिफरेंशिएटेड प्लियोमॉर्फिक सार्कोमास। इस तरीके के स्पेसिफिक ट्यूमर्स में इसका रोल आ रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं आपको ये बोलूँगी अंतिम जो मेरा मैसेज है कि फील्ड इज़ ब्राइट। नए नए तरीके के ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं जो आपको ठीक होने में, आपको कम से कम साइड इफेक्ट होने में मदद करेंगे। और एट प्रेजेंट हम लोग होलिस्टिक केयर की तरफ ध्यान देते हैं। बहुत सारे हमारे पेशेंट्स जो हैं वो यंग एज में, एडोलेसेंट एंड यंग एज, टीनेजर्स एंड पीडियाट्रिक्स, वो सब डायग्नोस होते हैं। तो हम देखते हैं कि हम कैसे उनका पूरी तरह से इलाज करके ना केवल उनको क्योर की तरफ ले जा सकें बल्कि
उनको एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ भी दे सकें और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकें पूरी तरह से नॉर्मल, एंड उसके लिए हम उनको अप्रोप्रिएट काउंसलिंग और मेजर्स प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।